I'm Vivek Kakkar and I'm a physiotherapist. I have done my post-graduation in community health and practicing since 2004. And I have currently I'm pursuing my PhD and I'm an EC member of Mumbai branch of IAP. Sir, today is the World Physiotherapy Day. How important this is for you people and how your people are just celebrating today. For us it is as good as हमारा दिवाली कह लीजिए. It's a global celebration of our profession, and together we are celebrating at our in our capacity at different places. We have a celebration today here in Chembur. Tomorrow we have a celebration in Navi Mumbai, where the IIP Navi Mumbai branch is celebrating. Then Sunday we have something coming up in Thane and Palghar area. So we have celebrations there. So we, at our capacity, at respective places, local and global, we are all celebrating World Physiotherapy Day. Sir, as soon as the other concern, other branches are concerned, physiotherapy, the people are not that much of aware of this physiotherapy. But now it became the most of the in doctors also they are also suggesting the physiotherapy. So what you people are doing to just promote this you can say this therapy, sir. There are I would like to take this question to a different depth, now. Uh, it was unknown for a long time till we were scattered. Now the IAP has strengthened leaps and bounds. The physios have realized their roles, and together we are creating a difference, educating the masses, educating people who can make a difference, relating ourselves to the people who need it from the people who can mend it. We are reaching everywhere. So yes, when it comes to growth, there is enormous growth we have reached, and on this day I can invite via your medium. I have written a short line which, if you allow me, I may read on. That moving beyond limits, I aspire and motivate all of you to join us in this phenomenal journey of physiotherapy. We are diversifying modalities to serve better, resolving all the challenges which you in person have for restoring your mobility and re-strengthening your lives. So this is what we physiotherapists are doing for the humanity. Thank you, sir. Pleasure. मेरा नाम डॉक्टर कृष्ण कुमार है और मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और मैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर अस्पताल के अंदर काम करता हूँ. आज मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस है अभी फिजियोथेरेपी फील्ड में काम करते हुए, और आज का दिन बहुत ही शुभ दिन मानता हूँ मैं ऐसे कि हम आज विश्व फिजियोथेरेपी दिवस को हम मना रहे हैं, और इसके लिए मैं सभी फिजियोथेरेपिस्ट को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं. और हमारे जो सहभागीदार हैं, जो हमारी पेशेंट्स होते हैं, जो आम पब्लिक है, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जो इस जर्नी को आगे बढ़ाने में हमारा बहुत सहयोग करते हैं. धन्यवाद. सर, एक चीज देखा जाता है कि उतना जितना ग्रोथ होना चाहिए उतना ग्रोथ फिजियोथेरेपी में नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं वो लैकिंग बिहाइंड हो रहा है. लैकिंग बिहाइंड इसमें यह है कि आपको लैकिंग इस वजह से हो रहा है कि मोस्टली लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस की प्रॉब्लम है. सेकंड है कि फिजियोथेरेपी का जो ट्रीटमेंट है किसी किसी कंडीशंस में बहुत लॉन्ग टर्म रहता है, तो उसकी वजह से भी जो एक कनेक्टिविटी है, पेशेंट लॉन्ग टर्म अपनी ट्रीटमेंट की जर्नी को कंटिन्यू नहीं कर पाता है, तो वो भी एक कारण होता है कि लोग उस पर थोड़ा सा ट्रस्ट कम करते हैं. और दूसरा, लोगों को क्या होता है कि फिजियोथेरेपी में थोड़ा किसी भी इफेक्ट को आने के लिए या उसका रिजल्ट आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन पेशेंट्स को या किसी को भी ट्रस्ट करने के लिए या उसको जल्दी से इम्प्रूवमेंट के लिए उसको इमीडिएट रिलीफ चाहिए. उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और इस पर बिलीव करना पड़ेगा. सो लॉन्ग टर्म बेनिफिट ही परमानेंट बेनिफिट है. शॉर्ट टर्म, यस, शॉर्ट टर्म बेनिफिट मे नॉट लास्ट लॉन्गर फॉर यू. सो इसलिए मैं सबसे यही विनती करूँगा कि लोग इस पर ट्रस्ट करें, ट्रीटमेंट को
इसको फॉलो करें। घर पे भी बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, जो कई सारी चीज़ें हैं कि हम विदाउट मेडिसिन के भी इसको ठीक कर सकते हैं और घर पर हम वो अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। ऐसा भी ज़रूरी नहीं होता है कि आपको हमेशा किसी फिजियोथेरेपी क्लिनिक पे या किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाकर के आपको ट्रीटमेंट लेना है। आप अपने आप को एक्सरसाइज के लिए एजुकेट कर सकते हैं, सीख सकते हैं और उसके बाद घर पे कर सकते हैं। ऐसी कई सारी चीज़ें भी होती हैं जिसमें कि हम उसको प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे भी हम फिजियोथेरेपी में काम कर सकते हैं, जिसमें कि कहने का मतलब है कि कोई बीमारी अगर हम सोचते हैं कि आने कोई छोटा सा डिफेक्ट है बॉडी के अंदर, आने वाले 5 साल में या 10 साल में वो हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है जो रिवर्स नहीं हो। अगर हम उसको पहले से ही एनालाइज कर लें, असेस कर लें, एग्जामिन करा लें, तो हम उस चीज़ को रोक सकते हैं जो आगे आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ में पहुंचा सकती है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। मैम क्या कहना चाहेगी, आज फिजियोथेरेपिस्ट डे है जिसको आप लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या थीम रखा है, कैसे मन में आया कि फिजियोथेरेपी डे को जो है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके हम सेलिब्रेट। सबसे पहले तो नमस्कार, मैं डॉक्टर तन्वी झा, बेटर हाफ ऑफ डॉक्टर नीरज झा, जो एक बहुत ही रिनाउंड न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट है और अभी इस प्रेजेंट जनरेशन में मुंबई में टॉप 3 फिजियो वर्ल्ड, हमारा जो सेंटर है वो टॉप 3 फिजियो वर्ल्ड के उसमें आता है। तो मेरे लिए एक बहुत ही खुशनसीब और मैं बहुत ही प्राउड फील करती हूँ कि ऐसे टाइम पे जहाँ लोग फिज़ियोथेरेपी को उतनी अहमियत नहीं देते, वहाँ पर ये फिज़ियोथेरेपी से अब झंडे गाड़ रहे हैं और हर जगह इन्होंने अपने नाम को ये करके दिया है कि लोग कहीं से भी दूर दूर से लोग आते हैं और स्पेशली उनसे ट्रीटमेंट करने के लिए कहते हैं कि फिर से करना है, फिर से ले लो। नमस्कार, मैं डॉक्टर तन्वी झा, बेटर हाफ ऑफ डॉक्टर नीरज झा। अपने आप को मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैं एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट, रेनाउंड फ़िज़ियोथेरेपिस्ट की वाइफ हूँ। इस टाइम में जहाँ फ़िज़ियोथेरेपी को उतनी अहमियत नहीं दी जाती है, वहाँ पर इन्होंने सिर्फ अपने बलबूते से न्यूरो फिज़ियोथेरेपी के माध्यम से पूरे ऑल ओवर मुंबई, क्या पूरे ऑल ओवर इंडिया में अपने नाम के झंडे गाड़ रखे हैं और इसीलिए मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है आज इस दिन को आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करते हुए। वैसे तो हर जगह नॉर्मल फिजियोथेरेपी डे पे लोग कैंप कंडक्ट करते हैं, सारी चीज़ें रहती है, पर हमारा एक ये उद्देश्य रहता है कि इस दिन जितने हमारे बड़े से बड़े जो रिनाउंड फिजियोथेरेपिस्ट है ऑल ओवर मुंबई, नवी मुंबई या आसपास के जो अपने एरिया है, कुछ लोग ऑल ओवर इंडिया से भी हम लोगों ने इनवाइट किया है उनको, कि वो सब मिले, एक दूसरे की जो केस स्टडीज़ है वो चर्चा करें, कैसे क्या माहौल बन रहा है, वो सारी चीज़ों के बारे में बताए और साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी थोड़ा सा नॉलेजेबल सेशन भी हो जाता है जब वो अपनी एक्सपीरियंस जो है वो हम लोगों के साथ शेयर करते हैं। कुछ अलग सा ये है, कैसा लग रहा है कि इस तरह की जो चर्चाएं होती है एक दूसरे का जो है शेयर करेंगे तो ऑब्वियसली जो है सोसाइटी सग्राह कर सकती है, उसमें दिस विल बी वेरी बेनिफिट टॉपिक। देखिए, ये सबसे ज़रूरी बात होती है कि यहाँ पर सिर्फ मैं नहीं रह जाता है। जब आप दूसरे को भी इन्वॉल्व करते हैं तो आपका नज़रिया उन तक पहुँचता है, उनका नज़रिया हम तक पहुँचता है। इसी के माध्यम से जो जनता या ऑडियंस देख रही है उन्हें भी पता चलता है कि क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से हैं और क्या उसमें अच्छा सुधार हो सकता है। जो भिन्न भिन्न तरीके से, सबका नज़रिया एक तरीके से नहीं होता, एक ही डिज़ीज़ को लोग 3-4 तरीके से आपको बताते हैं। तो जब इतने महानुभाव और अनुभवी डॉक्टर्स जब एक छत के नीचे बैठते हैं तो एक तरीके से ज्ञान का सागर आप लोग के लिए उपलब्ध हो जाता है। तो हमारी कोशिश यही है कि एक छत के नीचे जितने भी हमारे महानुभाव हैं वो सभी लोगों का ज्ञान आप तक पहुँचे। Hi, I'm Dr. Komal Kakkar. I'm a physiotherapist practicing women's health and physiotherapy in Navi Mumbai. Today the whole world Therapy Day, so how you people are celebrating this wonderful. First of all, I'd like to congratulate our entire fraternity. It's a great day for us, and we strive every year to bring in a lot of awareness. I'd like to first of all congratulate my entire fraternity on this wonderful day of World Physiotherapy Day, and happy World Physiotherapy Day to all the viewers as well. Like every year, we strive bringing in awareness, especially on this day and going through into the week itself. And today we are meeting here at Dr. Jha's Physio World Clinic, as you can see right behind me. And here again we are doing the same thing. We are sharing our inputs, our practice techniques with sir's inputs with us, and how we are looking at the same thing in different ways, because you may come to us with back pain
And so your neighbor might be coming to us with back pain, but why you are having back pain and why they are having back pain may be totally different, leading to us, to apply totally different goals of physiotherapy. So the way our profession is now diversifying, growing, you may have also come across many physiotherapists are now using various techniques. There are many clinics bringing in manual therapy, aqua therapy. Of course, exercise and electrotherapy are still a big part of our practice. And then there is also various forms of robotic assistive devices which are coming in for the same complaints, and we are now using them in a more diversified manner, in a more you could say fancy manner, just to bring in better results, more long lasting results. Thank you. Hello everyone, I am Dr. Neeraj Jha, neurophysiotherapist, practicing in Chembur. I am executive director of the Physio World. We are operating Physio World centers since 15 years in Chembur. Today is the World Physiotherapy Day. We are celebrating all over world physiotherapy celebration in entire world. Today we have done 7 places in medical checkup camp, mega medical checkup camp, or now we are organizing CME, continuous medical education for the physiotherapist. For the physiotherapist, awareness needed in masses. Now we are doing the lots of activities. Today, entire world is doing physiotherapy activities in the society for the social support system, for the upliftment of the society. Today we have done many places of the mega medical camp. We have the entire mega medical camp in entire super specialty fraternity of the cardiologist, orthopedician, gynecologist, physiotherapist, dental surgeon. We have done today at Signature Business Park and Pneumonia Bagh, Shivaji Nagar, in multiple places we have done the mega medical camp. Thank you so much. What are the things you are doing to promote these physiotherapies? Because as much as the other things, physiotherapy is not known for the other people. It is much more mass communications. या बिल्कुल आपने सही बोला, क्योंकि फिजियोथेरेपी का समाज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि लोगों को पता चले कि फिजियोथेरेपी में कैसे इलाज होता है। जैसे आज की डेट में अगर देखें, स्लिप डिस्क का ट्रीटमेंट के लिए लोग जाते हैं दूसरे डॉक्टर के पास, तो वहाँ पे लोगों को बताते हैं कि आपको ऑपरेट करना पड़ेगा, और आज की डेट में फिजियोथेरेपी से बिना ऑपरेट का पेशेंट ठीक होते हैं, और इवन 99% पेशेंट ठीक होते हैं जिनको लोग बता देते हैं कि इनको सर्जरी की ज़रूरत है। तो आज में फिजियोथेरेपी हर एक एज ग्रुप में ज़रूरत है, हर एक जगह ज़रूरत है, और हर एक फील्ड में आज की डेट में ज़रूरत है, ताकि जो भी पेशेंट्स हैं आज की डेट में अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट हो तो 90% लोगों को सर्जरी करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसलिए आज की डेट में फिजियोथेरेपी समाज में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है, ताकि जो भी लोगों को तकलीफ़ हो वो ज़रूर फिजियोथेरेपिस्ट से मिले, जहाँ भी हो वहाँ पर मिलें। और आज के डेट में फिजियोथेरेपी में काफ़ी एडवांसमेंट हो रहा है और सुपर स्पेशलिटी हो रहा है, इसलिए ज़रूरत है कि फिजियोथेरेपी के पास ज़रूर मिले, उनकी तकलीफ़ें काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। थैंक यू। सर, अपना इंट्रोडक्शन। मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र कुमार है। मैं खारगर में प्रैक्टिस करता हूँ एज ए फिजियोथेरेपिस्ट। ओके सर, आज फिजियोथेरेपिस्ट डे है, कितना महत्वपूर्ण होता है ये फिजियोथेरेपिस्ट डे आप जैसे लोगों के? फिजियोथेरेपी आज वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे मनाया जा रहा है। आज के युग में फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। आज के युग में सबको, बूढ़ा, बच्चा या कोई भी वर्ग के लोगों के लिए हर क्षेत्र में इसकी ज़रूरत पड़ती है। भले ही जिस तरह मेडिसिन एक आगे जीवन दान के लिए योगफुल है, वैसे फिजियोथेरेपी भी आगे ले जाने के लिए इसका बहुत बड़ा योगदान है। सर, देखा गया है कि जब डॉक्टर्स जहाँ पर अपन कहीं किसी का ऑपरेशन हुआ या किसी का एक्सीडेंट हुआ, तो उसको एक्सरसाइज के थ्रू जब उनको कुछ ट्रीटमेंट करवाना रहता है तो वो फिजियोथेरेपी को रेफर करते हैं। जी, तो कौन कौन सी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जहाँ पे फिजियोथेरेपी को जो है आप उसको जो है रेफर कर सकते हैं, और किस तरह से फिजियोथेरेपी जो है उस चीज़ को प्रमोट करके उस बीमारी को ठीक कर सकते हैं? जैसे फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है, योगदान है। जैसे न्यूरो केस में, आर्थो केस में, स्पोर्ट्स केस में। तो जैसे सीधा मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ कि जैसे कोई रोड एक्सीडेंट हुआ, ट्रॉमा केस हुआ, तो उसके लिए जैसे एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर उसको सर्जरी करता है। सर्जरी करने के बाद फिर वो उसको रेफ़र कर देता है फिजियोथेरेपी के लिए। तो फिजियोथेरेपी के डिपार्टमेंट में जाने के बाद फिर वो फिजियो का रोल अपने हिसाब से अपना अदा करता है। आजकल देखा गया है कि जितने
स्पोर्ट्स पर्सन है वो पर्सनल फिजियोथेरेपी रखते हैं? उसका क्योंकि स्पोर्ट्स का रखने का रीज़न यही है कि आए दिन रोज़मर्रा जीवन में कभी न कभी जैसे हम स्पोर्ट्स खेलते हैं तो कभी न कभी इंजरीज होती रहती हैं। जैसे एक सिंपल क्रिकेट ले लीजिए, भारत में काफ़ी क्रिकेट का महत्व है, लोग काफ़ी देखते हैं, अभी एशिया कप चल रहा है कि नहीं? तो खेलते खेलते कुछ ना कुछ इंजरी हो ही जाती है, स्पोर्ट्स इंजरी हो जाती है, जैसे लिगामेंट पुल हो गया, स्प्रेन हो गया, स्ट्रेन हो गया। तो उसमें पर्सनल फिजियोथेरेपी रखने से ये होता है कि उसका बेटर केयर कर सके, इसलिए वो लोग उस हिसाब से अपना पर्सनल स्पोर्ट्स फिजियो रखते हैं। धन्यवाद।